સમાચાર વાપીથી સામે આવ્યા છે તો વાપીના રિયા હોસ્પિટલના ડોક્ટર પર બેદરકારીના આક્ષેપો થયા। કરવડ ખાતે રહેતા પંકજ રોહિત નામના ઈસમે હરિયા હોસ્પિટલ ખાતે ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 2:40 કલાકે પોતાની સાસુ મીનાબેન બાબુભાઈને છાતીમાં દુખાવો થતા લઈ આવવામાં આવ્યા હતા। તો ત્યારબાદ ફરજ પરના ડોક્ટરે તેમને આઈસીયુમાં રાખવા માટે જણાવ્યું। આ બાદ રાત્રિભર તેમની સારવાર ચાલ્યા બાદ અચાનક તબિયત વધારે લથડી પડી। તો મીનાબેનના પરિવારજને હોસ્પિટલ અને ત્યાંના ડોક્ટરો વિરુદ્ધ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે હરિયા હોસ્પિટલ દ્વારા પેશન્ટને બરાબર સારવાર આપવામાં આવી નથી અને તેઓ દ્વારા દર્દીના પરિવારને અંધારામાં રાખવામાં આવ્યા હતા અને દર્દીના પરિવારમાં તેમના પતિ એટલે કે બાબુભાઈ કે જેઓને વાંચતા લખતા આવડતું ન હોય છતાં તેમના પાસે કાગળ પર સહી કરાવી હાથ ઊંચા કરી દીધા હતા। તો તેના ઉલટા જવાબમાં હોસ્પિટલના ડોક્ટર SS સિંઘ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તમામ સારવાર સારી રીતે કરવામાં આવી હતી અને મીનાબહેનનું 8 મહિના પહેલા જ આ જ હોસ્પિટલમાં વાલ્વ નાખીને સારવાર લીધી હતી। તો આ સાથે ત્યારબાદ ગઈકાલે રાત્રે તેઓ 2:40 કલાકે વધારે દુખાવો થતા એડમિટ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની તબિયત વધારે ખરાબ હોવાથી આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું હતું। તો તેઓની પરમિશન બાદ જ તમામ સારવાર તેમને અપાઈ હતી અને પતિ એટલે કે બાબુભાઈને તમામ પ્રક્રિયાની જાણ કરી તેમની સહી લેવામાં આવી હતી। આ સમગ્ર ઘટનામાં હોસ્પિટલની કોઈ બેદરકારી નથી તેવું ડોક્ટરે જણાવ્યું છે। તો હોસ્પિટલમાં કોઈ પણ દર્દી આવે તો ડોક્ટરનું પહેલું કામ દર્દીનું સારવાર કરવાનું હોય છે। તે જ રીતે હોસ્પિટલ દ્વારા તમામ સારવાર કરી તેમના પરિવારને સમગ્ર જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મીનાબહેનના પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું હતું કે અમે મીનાબહેનને બીજી હોસ્પિટલમાં લઈ જઈશું અને ત્યાં જ ઇલાજ કરાવીશું। તો ત્યારે હોસ્પિટલના ડોક્ટરો દ્વારા તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે મીનાબહેનની હાલત વધારે ખરાબ છે અને બીજે ક્યાંય લઈ જશો તો હરિયા હોસ્પિટલની કોઈ જવાબદારી નથી। તેમ છતાં મીનાબહેનના પરિવાર દ્વારા ડિસ્ચાર્જ લઈને એમ્બ્યુલન્સ વડે બીજા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા। મારું નામ પંકજભાઈ અમૃતભાઈ રોહિત છે। મારા સાસુજી હતા, એમનો 7 મહિના પહેલાં હરિયા હોસ્પિટલમાં વાલનું ઓપરેશન કર્યું હતું। ઓપરેશન કર્યું હતું, સારું હતું, બધું બરાબર ચાલતું હતું, દવાખાને બી ટાઈમ આવતા હતા। પછી ગઈકાલે દવાખાને બતાડવા માટે બી લઈ આવેલા હતા। પછી રાતના અચાનક દુખવાનું થયું તો અમે હોસ્પિટલ લઈ આવ્યા તો ઇમરજન્સીમાંથી ડાયરેક્ટ આઈસીયુમાં મૂકીને પછી કીધું થોડી વારમાં કે આ જ છે, થોડી વારમાં કે આ પ્રોબ્લેમ છે। સરખી રીતના કોઈ જવાબ આપતા નથી। મારા સસરા બાબુભાઈ પાસે સાઇન લઈ લીધેલી, પછી અમારા પર દાદાગીરી કરશે, તમારે જે કરવું હોય તે કરો, તમારે જ્યાં લઈ જવું હોય તે લઈ જાઓ ને ખુલ્લી ચેલેન્જ કરે છે હરિયા હોસ્પિટલના ડૉક્ટર સાહેબ સિંઘ સાહેબ। वाइब्रेंट में आप आए हो, हाँ, वाइब्रेंट में किसने रिफर किया आपको? हम लोग कहीं भी लिखी है तो डॉक्टर लोगों ने बहुत डॉक्टर लोग ने बोला कि तुम लोग जहाँ लेके जाना हो लेके जाओ। तो हम लोग ने सोचा सूरत लेके जाते हैं, वो लोग ने कुछ किया नहीं। तो हम लोग एम्बुलेंस बुलाया और उधर से हरिया से सूरत लेके जाने के लिए महावीर हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए जैसे एम्बुलेंस निकाला, हाईवे पे आया तो तबीयत और बिगड़ गया। तो हम लोग ने रास्ते में वाइब्रेंट हॉस्पिटल था तो उसका सहारा उधर लेके गए तुरंत इमरजेंसी में। तो उधर डॉक्टर साहब ने मूर्ख घोषित किया। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हरिया हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। हर दिन हर गरीब लोग को पिसा जा रहा है हरिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के नाम पे, और सब कागज पे चलता है हरिया हॉस्पिटल। और इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब सिंह साहब कितना बड़ा आदमी हो कि हम लोग ने भगवान का दूसरा रूप मानते हैं लोग, वो आशा से हरिया हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हर दिन हर कोई ऐसा ही आदत से ये लोग बाहर निकाल देते हैं, बोल देते हैं मर गया, ट्रीटमेंट डॉक्टर है नहीं, फैसिलिटी है नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टरों की। तो भी ये लोग ट्रीटमेंट के नाम पे थोड़ी देर में ये हुआ, थोड़ी देर में ये हुआ, ये ट्रीटमेंट चल रही है, वो ट्रीटमेंट चल रही है, ये बोल के सब कर रहे हैं। पेशेंट की उम्र कितनी थी? पेशेंट की उम्र 44-45 उम्र थी। कब वहाँ पर भर्ती कराया था? कल रात को 12:30 बजे कल रात को 12:30 बजे हम लोग ने एडमिट किया था। फिर वो लोग ने थोड़ी देर में साइन कब ले लिया मालूम ही नहीं हुआ, वो पढ़ा लिखा है नहीं। तो भी हम लोग को हम लोग सब पूरी रात थे उधर बैठे, तो भी वो लोग ने बताया नहीं, थोड़ी देर में ये हुआ, थोड़ी देर में वो हुआ। अभी बोलता है हम लोग ने जब एम्बुलेंस से निकलना था तब बोला कि निमोनिया है, वाल दोनों ठीक है। सही जानकारी किसी ने नहीं दी? सही जानकारी हम लोग को किसी ने नहीं दी, सबने अंधेरे में रखा। और कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं उधर, सब प्रैक्टिस के नाम पे सब इधर चल रहा है।
एक मीना बहन करके हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आई थी अ, रात को 1 बजे के आसपास में, और उसको उसके कंडीशन जब एडमिट हुई तो काफ़ी सीरियस थी। ब्लड प्रेशर लो था, ऑक्सीजन भी लो था। पेशेंट का पहले से हार्ट के वाल्व का ऑपरेशन हो चुका है और दोनों लंग्स में पानी भर गए थे, हार्ट फेल हो चुका था। ये सब कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, इसलिए उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। उनके रिलेटिव्स को पूरी जानकारी दी गई और उनको बताया गया कि कंडीशन काफ़ी सीरियस है और सुबह तक कुछ बोला नहीं जा सकता। सुबह एक बार देख के कंडीशन हम आपको फिर से बताएंगे। सुबह में पेशेंट के रिलेटिव्स का कहना है कि अभी तक के वो ठीक नहीं हुई, दे वर नॉट सेटिस्फाई, उनको लगता था कि ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर्स ने हमारे आईसीयू में पूरी रात भर मेहनत किया है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी देखा है, फिजिशियन ने भी देखा है, इंटेंसिविस्ट ने भी देखा है, 9 घंटे के अंदर 5-6 कंसल्टेंट ने देखा है। इस बीच में इस बीच में उनके 3 बार तो रिलेटिव्स को लिखित में एक्सप्लेन किया गया है कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, और वर्बल तो अनेकों बार बताया जा चुका है उनके दूसरे रिलेटिव्स को। और सुबह में आके पेशेंट ने काफ़ी यहाँ हो हंगामा किया है और उनका कहना है कि पेशेंट का अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। हमने उनको ऑप्शन दिया कि अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो कृपया यहाँ झगड़ा नहीं करें, आपको जहाँ भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, हम लोग अपनी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और डॉक्टर डॉक्टर का काम है बेस्ट ट्रीटमेंट देना, जो कि और हम लोगों का इसके आगे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिर पेशेंट ने रिलेटिव्स ने अपने निर्णय लिया कि बाहर लेके जाना चाहते हैं। अपने से खुद से एम्बुलेंस अरेंज किया, डॉक्टर अरेंज किया और उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने लगे। ऑल्दो उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, ऐसे कंडीशन में ले जाना भी रिस्की रहता है, सब समझाया हुआ है और हमारे डॉक्टर ने हर एक चीज़ की एविडेंस बेस लिखा हुआ है और उनका साइन लिया हुआ है। इनकी इतनी ही देर में उनके 3-3 4-4 बार रिलेटिव्स ने साइन भी करके दिया है। अब उसके बाद यहाँ से तो गई, उसके बाद हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ, कहाँ ले गए, क्योंकि हमने किसी हॉस्पिटल में भेजा नहीं था। हम भेजते तो शायद हम अपने डॉक्टर के साथ भेजते, हमारे पास खुद कार्डियक एम्बुलेंस हम भेजते। उन्होंने खुद ही अपना अरेंज किया, खुद ही डॉक्टर अरेंज किया, खुद ही अपना हॉस्पिटल सेलेक्ट किया और बोला हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। हम लोग कोई भी पेशेंट अगर जाना चाहता है दूसरी जगह तो हम लोग कभी मना नहीं करते हैं, अपनी ओर से एक्सप्लेन जरूर कर देते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, ले जाने में फ़ायदा होगा नहीं होगा।